الحمدللہ ویورز، ہم جو ہیں دربار پر پہنچ گئے ہیں، اور دربار میں پہنچنے سے پہلے جو ہے یہ منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جو یہاں پہ اسٹال وغیرہ لگا کے بھائی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو اور اس کے موقع پہ یا دیگر جو ہے یہاں پر جو ہے نا عوام آتی ہے تو وہ یہاں سے خریداری کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ان کے پاس ہر میٹیریل ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی آئیں تو یہاں پر جو ہے نا آپ کو بہت ہی اچھی چیزیں اور بہت ہی معیاری چیزیں مناسب قیمت پہ ملیں گی۔ تو یہ دربار کے ساتھ منسلک ہے یہ بازار، یہ آپ دیکھیں ان کے پاس ہر میٹیریل، ہر چیز۔ یہ کچھ جویلریز وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، یہاں پر کچھ واچ وغیرہ ہیں، یہ ویلٹ وغیرہ ہیں، اور ٹوائز وغیرہ بھی ہیں بچوں کے۔ تو آپ دیکھیں یہ بچوں کے شوز وغیرہ لگا کے بیٹھے ہیں، بہت ہی خوبصورت خصہ سٹائل، بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی خوبصورت۔ اور یہ دربار کے اندر جو زائرین جاتے ہیں، یہ جو ہے نا ان کے لیے یہاں پر یہ اس کو کیا کہتے ہیں، مکھانے، یہ پھول مکھانے، اور یہاں پر یہ چھوارا وغیرہ بھی آپ کو ملے گا، یہ آپ دیکھیں۔ تو اگر کبھی یہاں پر آنا ہو تو پہلے اس بازار میں آئیں، اور اس کے بعد آگے پھر جو ہے نا آپ اپنے سفر کو کنٹینیو کریں۔ تو ویڈیو کو زیادہ لمبا کرنے سے پہلے چلتے ہیں اندر دربار کی طرف، اور آپ کو دربار جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ویورز، کافی لمبا ٹریول کرنے کے بعد، کافی سفر طے کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم لوگ جو ہے نا اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں۔ ہم لوگ اس وقت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو آستانہ ہے باہر، جو صحن ہے، ہم لوگ وہاں پر آرام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے۔ آئی تھنک 40 سے ابو ٹمپریچر ہوگا یہاں پر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 40 پہ ٹمپریچر کتنا ہائی ہوتا ہے، اور ہم لوگ پھر 100 کلومیٹر دور سے ٹریول کر کے آئے ہیں، اور وہ بھی بچے ساتھ ہیں جسٹ آپ لوگوں کے لیے۔ تو ابھی جو ہے نا ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیاس بھی کافی ساری لگی ہوئی ہے، تو پانی پیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا زیارت کرواتے ہیں اندر کی۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ سرائکی زبان میں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھیں، ان کا سارا عشق جو ہے اللہ تعالیٰ سے وابستہ تھا، اور انہوں نے شاعری سے اپنا نام کمایا اور وہ مقام حاصل کیا جو ہر انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ کافی سارے ان کے کلام ہیں، دیوان فرید ان کا مشہور کلام ہے۔ تو انشاءاللہ ان کا جو یہاں پر ان کے زیر استعمال جتنی بھی اشیاء تھیں، جتنی بھی چیزیں تھیں، انشاءاللہ ان کی بھی زیارت ہم آپ کو کروائیں گے، اور اندر دربار کی بھی زیارت انشاءاللہ آپ کو کروائیں گے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تھوڑا پانی پی لیں، پیاس بہت زیادہ ہے۔ یہ ویڈیو ہماری آپ نے پوری دیکھنی ہے، یہ ویڈیو ویورز آپ نے ہماری پوری دیکھنی ہے، کیونکہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی ویڈیو ہے۔ آپ کو دیدار بھی ہو جائیں گے، اور آپ کو یہ منظر بھی بہت سہانا اور بہت خوبصورت لگے گا۔ تو آپ احمد سے بات کریں، میں تھوڑا سا پانی پی لوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کراچی سے ہم نے ٹریول کیا، تو یہاں پر آئے تاکہ یہاں کا کلچر، یہاں کی ثقافت ہم اپنے تمام جو ہیں فرینڈز، دوست جو ہمارے ملک سے باہر ہمیں دیکھتے ہیں، سعودی عرب، دبئی، UK، بحرین، اسپین، جہاں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ خوبصورت مناظر ہم دکھائیں گے۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی ہمارا ویورز یہاں کا ہو، تو جب ان کو یہ چیز دکھائی جائے تو وہ دیکھے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی جو یادیں ہوتی ہیں وہ بہت تازہ ہو جاتی ہیں، اور بہت سکون ملتا ہے۔ اتنا ٹریول ہم نے آپ کی خاطر کیا ہے، کیونکہ ہمارے کافی سارے دوست جو ہیں وہ باہر سے ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔
अपनी वो खूबसूरत जगह दिखाएं जो आज तक हमने नहीं देखी। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको जो है ना दरगाह के अंदर ज़ियारत करवाते हैं। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की जो आखिरी आरामगाह है वो आपके साथ शेयर करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम आपको लेके जाएंगे उनका जो म्यूज़ियम जहाँ पे उनकी ओल्ड उनकी इस्तेमाल की जहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं उनकी ज़ियारत आपको करवाएंगे कि उस ज़माने में किस टाइप की और किस तरह की चीज़ें होती थी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम आपको 3 स्टेप कर ये वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि आप इतनी देर की वीडियो आप 5 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते, तो आप इतनी देर की कम देखेंगे। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द पोस्ट करेंगे आपको लोगों पे। तो अभी चलते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर अंदर दरगाह में, अंदर जाएंगे और ये यहीं पर क्योंकि लेडीज़ को अलाउ नहीं है, मैं अंदर जाता हूँ, ख़ुद भी ज़ियारत करूँगा और आपको भी ज़ियारत करवाऊँगा। तो फिर चलते हैं अंदर, क्योंकि इनको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। फिर यहाँ से फ़ारिग होकर हम लोग कहीं खाना खाने जाएंगे, फिर वहाँ से फ़ारिग होकर जो है ना हमें घर भी जाना है। तो मैं अंदर जाता हूँ और आपको ज़ियारत करवाता हूँ। तो व्यूअर्स हम दरगाह के अंदर आ गए हैं और जो है आपके साथ ये रूह परवर मनाज़िर जो हैं आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साईं रहमतुल्लाह अलैह, ये उनकी आखिरी आरामगाह मुबारक है। उसके बाद फिर हज़रत ख्वाजा नाज़िक करीम साईं रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आखिरी आरामगाह है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद आकिल साईं उनकी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आखिरी आरामगाह है। उसके बाद फिर हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आखिरी आरामगाह है। फिर उसके साथ जो है ना हज़रत ख्वाजा जहाँ साईं, उनकी आखिरी फ़खर जहाँ रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आखिरी आरामगाह है। और उसके साथ हैं हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका हमने ज़िक्र किया था। वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने जो शायरी से, अल्लाह से इश्क से उन्होंने जो अपना नाम बनाया, वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। अपने ज़माने में उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें उनकी सबसे जो फेमस किताब थी, सराइकी ज़बान में उन्होंने सारी किताबें लिखी। तो उनकी जो फेमस किताब थी वो दीवान फ़रीद जो है, वो बहुत ही मशहूर जो है ना उनकी एक किताब है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ज़ायरीन भी आते हैं, लेडीज़ को अलाउ नहीं होता अंदर आने के लिए। तो आप ये उनकी खूबसूरत जो है ना आरामगाह का आप दीदार करें, ज़ियारत करें। आप हमें मुल्क से बाहर हमारे जितने भी दोस्त हैं, बहन भाई हैं, वो ये रूह परवर मनाज़िर देखें। और इनकी जो है ना दरगाह मुबारक का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बनाया हुआ है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर भी लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं, जो इस हस्ती के बारे में जानते हैं। तो जो बंदा यहाँ पर आएगा वो इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पर आता है। तो आप ये देखें, यहाँ पर काफ़ी सारे ज़ायरीन भी होते हैं, बहुत दूर से ये लोग भी सफ़र करके आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं अगर आपको कैप्चर करके दिखाऊं करीब से, तो आप ये देखें, दीदार करें, ज़ियारत करें, आगे शेयर करें, ज़ियारत करें, आगे शेयर करें, ताकि हमारे जितने बहन भाई मुल्क से बाहर हैं, जो इस हस्ती को जानते हैं, वो इनकी ज़ियारत कर लें। ये उनकी आखिरी आरामगाह मुबारक है। काफ़ी सारे ज़ायरीन पूरे मुल्क से बाहर यहाँ पर आते हैं। ये रूह परवर मनाज़िर कोट मिठन शहर के हैं। बहुत ही खूबसूरत और दिलकश मनाज़िर है। तो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की दरबार के साथ ही उनके जो है ना रिश्तेदार वगैरह जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, तो उनकी आखिरी आरामगाहें आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप दीदार करें, ज़ियारत करें, आगे शेयर करें। और मज़ार भी बहुत ही पुरसकून और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, हमने आपके साथ दरगाह के अंदर के रूह परवर मनाजिर शेयर किए। हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी आरामगाह की आपको ज़ियारत करवाई। और दरगाह पे आएँ और लंगर ना खाएं तो ये हो नहीं सकता। हम इस वक्त लंगर खाने में मौजूद हैं। बच्चों को भी भूख लगी हुई थी, तो लंगर खाना तो ज़्यादा सवाब की बात है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर होटल पे जाने की बजाय हम लोग यहाँ पर आए हैं और लंगर खा रहे हैं आपके सामने। और सवाब का सवाब भी है और भूख की भूख भी ख़त्म हो जाएगी। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्या चाहिए? पानी चाहिए? पानी की बोतल ये तो गर्म हो चुका है। तो लंगर खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और हम कहीं भी दरबार पे जाते हैं ना, जब तक हम लंगर ना खाएं ना, तो यकीन करो हमारा ट्रैवल मुकम्मल नहीं होता। आप जब भी किसी दरगाह पे जाएं तो लंगर लाजमी खाएं। लंगर खाने से ही आपका ट्रैवल और आपकी पिकनिक पूरी हो जाती है। घर की तो रोज़ ही खाते हैं हम, होटल की भी खा लेते हैं, लेकिन ये नसीब से मिलता है लंगर। यहाँ पे जो आता है नसीब अपना खा के जाता है, और नसीब से ही खा के जाता है। नसीब में होता लंगर मिल जाता, नहीं होता तो कोई चले जाते। इसी तरह से बात हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पर हज़रत साहब की जो ज़माने की चीज़ें हैं, उनकी इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं, वो आपको दिखाएंगे। और इंशाल्लाह सब कुछ दिखाएंगे हम आपको। उनका कुर्ता मुबारक मेरे ख्याल में रखा हुआ है ना, उनका कुर्ता मुबारक भी रखा हुआ है, हम आपको उसकी भी ज़ियारत भी कराएंगे। देखो गिलास में डाल के पियो ना बेटा। घर के मुर्ग मसाला और यहाँ की दरगाह की दाल, सुभान अल्लाह, सबको पीछे छोड़ जाती है। मुझे भी दे दो थोड़ा पानी। है पानी उसमें, वो नहीं पीना, वो पी लो ना। वीडियो ज़्यादा लंबी होने की सूरत में हमने वीडियो को 3 पार्ट में जो है ना डिवाइड किया है। ये सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं, उसके बाद थर्ड पार्ट इंशाल्लाह हम जो है ना वो अपलोड करेंगे। जो उनकी इस्तेमाल की चीज़ें थी उसका हम इंशाल्लाह थर्ड पार्ट बहुत जल्द अपलोड करेंगे, इंतज़ार कीजिएगा। और हमारी ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स ये कहते हैं कि आप अपने गांव की सैर करवाएँ, गांव की अच्छी अच्छी यानी कि इमारतें, ये चीज़ें दिखाएँ, ज़मीनें दिखाएँ, किनारे दिखाएँ। तो व्यूअर्स, हमने आपको सब कुछ दिखाया गांव का, और फिर भी आप हमारी वीडियो पूरी ना देखें तो ये फिर आपकी मर्ज़ी है, इसमें किसी का जोर नहीं है। व्यूअर्स, मिलते हैं थर्ड पार्ट में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।